Hello students, good evening to all of you. So in this video we will discuss to how to calculate the oxidation states of the atoms in the molecules. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. So in this video we will discuss how to calculate the oxidation state. First of all we need to know what is the oxidation state or oxidation number. Oxidation state and oxidation number are approximately the same thing for you. So the oxidation number is defined as the charge in which an atom appears to have when all other atoms are removed from it as ions. It may positive or negative. Means simply, what is the oxidation number or oxidation state? It is the simply charge. It is the charge that is possessed by the atom in the molecule. It is the charge only, so it may have the positive or negative sign. So an element may have different oxidation states or oxidation number in its different compounds. Okay, so oxidation number is okay. So there are few rules are given to calculate the oxidation number of the atom present in the molecule. So एक एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं यहाँ पर, और वो रूल्स अगर हमें पता है तभी हम आगे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर पाएंगे. सो we should have an idea about these rules. So let's have a quick review of these rules. So the first one is the algebraic sum of the oxidation numbers of all the atoms in an uncharged neutral compound is 0. In an ion, the algebraic sum is equal to the charge on the ion. Means suppose there are 4-5 atoms in a molecule, so the sum of those 4-5 atoms, the algebraic sum of those 4-5 atoms ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो होगा 4-5 जो कुछ 4-5 एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल. If there is no charge, then the total sum of the oxidation states of the different atoms in the molecule will be equal to the 0. And if there is positive or negative charge on the molecule, then the total sum of the oxidation state of the atoms will be equal to that charge. So, and the second point is all element in the elementary state have oxidation number is 0. Means the नेचुरली अकरिंग जो हमारे पास कंपाउंड हैं जो नेचर में फ्री स्टेट्स में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस भी, तो ये सब नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 कंसिडर करते हैं. फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट we consider the oxidation state of fluorine is -1. The oxidation state of oxygen is the very important and interesting. The oxidation state of oxygen generally we consider the oxidation state of oxygen is -2. But in peroxide cases like example is given here, in sodium peroxide Na2O2, the oxidation state of oxygen is -1. But two cases are more importance of there here, and these are very important for the exam point of view. So OF2 ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, एंड O2F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ऑक्सीजन का +1. सो O2F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का +1, OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Na2O2 में -1, बिकॉज इट इज़ परोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा ऑक्सीजन का, और जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा. सो हाउ विल वी कम टू नो दैट वेदर इट इज़ परोक्साइड और नॉट? परोक्साइड में जब हम व्हेन वी ओपन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, देन वी विल फाइंड
oxygen to oxygen single bond, then it will be the peroxide case. And that two oxidation that are linked by the that two oxygen atom that are linked by the single bond with each other, that will have the -1 oxidation state. इन ऑल द कंपाउंड्स एक्सेप्ट आयनिक मेटेलिक हाइड्राइड्स, मतलब जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, इन ऑल द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1. Generally, the oxidation state of hydrogen is +1, except in the case of hydrides. In the hydrides, the oxidation state of hydrogen is -1. So in NaH, that is sodium hydride, the oxidation state of hydrogen is -1. सो ये सब आप बाद में ऑक्सीजन के केस में जो OF2 है, O2F2 है, ये सब आप कैलकुलेट कर पाएंगे बाद में, एक बार रूल्स देख लीजिए. So oxidation number of alkali metals is +1 and alkaline earth metals is +2. Oxidation number of metal in amalgams is 0. अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इफ़ देयर इज़ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड between the if in case of coordinate bond, it gives +2 value of oxidation number to less electronegative atom and -2 oxidation values of value to more electronegative atom when coordinate bond is directed from less electronegative atom to more electronegative atom. We will discuss it with the example in the coming slides. If coordinate bond is directed from more electronegative to the less electronegative atom, then its contribution be 0 for both the atoms. Okay, so for p block elements, the maximum oxidation state is the group number, while the minimum oxidation state is the 8 minus group number. Group number -8 is equal to the group number -8. In transition metals are of very much importance for the point of view of oxidation number. So transition metals show variable oxidation states because they can use their ns and n-1d orbital electron for bonding. So the highest oxidation number is equal to the number of ns and n-1d unpaired electrons, while the lowest oxidation number is equal to the ns electrons. So now come to the numerical approach, how to calculate the oxidation state. So we want to calculate the oxidation state of hydrogen in H2O, nitrogen in NH4+, sulfur in S2O3 double minus, and chromium in Cr2O7 double negative. So we will see the calculation of oxidation state one by one. So what is the starting point for us? That is the first point. In first point we have discussed that sum of the oxidation states of all the atoms in the molecule will be equal to the charge on the molecule. So that point is also written over here. Sum of all oxidation states of all atom equal to overall charge of the molecule. So water पे H2O पे how much charge is there? 0 charge is there. So suppose we have considered, let the oxidation state of hydrogen be x. So 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का हमने x ऑक्सीडेशन स्टेट माना है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2x, प्लस ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, तो प्लस -2 और इजिकल टू टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पे 0. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किया है और चार्ज इक्वल, और जितना मॉलिक्यूल पे चार्ज था उसके इक्वल कर दिया है. मीन्स द सम ऑफ oxidation state of all the atoms equal to the charge on the molecule, and the charge is 0, hence we have put the 0 here. So after the calculation we will get x is equal to 1, means the oxidation state of hydrogen in H2O is 1. नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है ये पॉइंट जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द बेसिक पॉइंट and it will remain same in all slides limited. And in NH4 अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सो अमोनियम पे कितना चार्ज है +1 का चार्ज है. तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ द
ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम विल बी इक्वल टू +1। सो वही हमने किया है, नाइट्रोजन का मान लिया है x ऑक्सीडेशन स्टेट। सो x + 4 × +1 इज इक्वल टू +1। ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट x इज इक्वल टू -3। सो समझ लीजिए इस बात को, हमने जितने भी एटम हैं अमोनियम आयन में, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल कर दिया है टोटल द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है ना। नेक्स्ट है सल्फर इन H2O3। तो सल्फर इन H2O3 में कैसे निकलेगा? सल्फर का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया है, तो सल्फर का x, एक सल्फर का x, 2 सल्फर का 2x प्लस 3 O है। O ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो 3 एक ऑक्सीजन का कितना? -2। तो फॉर 3 ऑक्सीजन 3 × -2, 3 × -2 प्लस में लिया, प्लस किया है इसको, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज -2, सो इज इक्वल टू -2। तो x विल बिकम +2। So the oxidation state of chromium in Cr2O7 double minus ion chromate into Cr2O7 double minus ion dichromate ion। तो सर लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम बी x। तो x अगर क्रोमियम का लिया है तो क्रोमियम का कितना? 2x। 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम का x माना है 2x। 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो +7 × -2 इज इक्वल टू -2। टोटल ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट x इज इक्वल टू +6। it is important, it is easy, but you have to make practice with this। Next, determine the oxidation number of the underlined element। these molecules are of great interest। ये molecule generally पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो K2Cr2O7, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? K2 का हमने लिया, K इज़ द पोटेशियम, मीन्स इट इज़ द S ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल का अभी हमने रूल्स में पढ़ा है, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे? +1। तो एक पोटेशियम का +1, 2 पोटेशियम का 2 × +1। क्रोमियम का हमें निकालना है, तो 2 क्रोमियम का, एक क्रोमियम का x मान लिया, 2 क्रोमियम का 2x। सो 2 + 2x एंड O7, एक ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का 7, ऑक्सीजन का 7 × -2 मीन्स 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इज इक्वल टू 0। तो x वी विल गेट +6। इसी तरह से Fe6 का भी निकाल लेंगे। तो इस Fe6 के ऊपर -4 चार्ज है, तो इक्वल टू कितना कर देंगे? -4 कर देंगे। साइनाइड Cn, साइनाइड का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो 6 × -1 कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा ना। ये अगर नेक्स्ट देखिए, अब Na2S4O6, इसमें सोडियम का हमने +1 ले लिया है, ऑक्सीजन का -2 ले लिया है, और सल्फ़र का x ले लिया है। तो वही सिंपल कैलकुलेट किया है, तो x का वैल्यू मेरे पास आया है सल्फ़र का 5/2। दिस इज़ द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज़ द एवरेज। we will also discuss something about the average and individual oxidation state। So first completed Cairo acids। In Cairo acids, the formula is H2SO5, structure is given here। so इसमें देखिए जो peroxide वाले ऑक्सीजन है, जिस इन द peroxide oxygen are those oxygen which are linked oxygen to oxygen single bond is the peroxide oxygen। the peroxide oxygen having the oxidation state -1, while the other oxygen have oxidation state -2। so the on calculation we will get the oxidation state of sulfur is 6। कैरो एसिड्स CrO5 में देखिए, CrO5 में देखिए स्ट्रक्चर, CrO5 का ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें जो पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन है, द पेरोक्साइड ऑक्सीजन विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल द अदर ऑक्सीजन विल हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो x + 4 × -1, बिकॉज 4 ऑक्सीजन आर ऑफ पेरोक्साइड, तो 4 × -1 प्लस -2 × 1 मीन्स 1 ऑक्सीजन इज जनरल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6। नाउ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। देखिए अच्छा C3O2, अब हमने इसमें आप पढ़ा था एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पढ़ा था, तो उसमें देखिए
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी पढ़ा था और हमने ये देखा था एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब समझिए ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम। सो हियर वी in the last question Na2H4O6 we are getting the oxidation state 5/2. So how can the charge be fraction? There is any possibility that a charge can be a fraction? फ्रैक्शन तो चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज आया होगा तो इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होगा तो चार्ज आया होगा, या तो इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से उसके पास से हट गया, शिफ्ट हो गया, दूर हो गया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास रहा है एटम के पास में तो माइनस चार्ज रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा वो मान लीजिए। तो x is equal to 5/2, तो हाउ कैन इट बी फ्रैक्शन? सो इट इज़ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स 4 सल्फ़र का ये एवरेज है, चारों सल्फ़र पर एवरेज है। लेकिन अगर इंडिविजुअल सल्फ़र आप देखेंगे, इंडिविजुअल सल्फ़र पर देखेंगे तो 5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगा, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, बट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 5/2 ही होगा। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे यहाँ नहीं आता है, जहाँ तक कंपटीशन में भी नहीं आते हैं, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन के ऊपर लिखा हुआ है, कार्बन के ऊपर जो चार्जेस लिखे हुए हैं ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर आप वैसे निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगा कार्बन का हम मान लेंगे x, तो 3x + 2 × -2, सो देन वी विल कैलकुलेट x इज इक्वल टू +4/3, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम 4/3। तो C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +4/3। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ध्यान से पढ़िए, एक बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स सारे लिए गए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इन्हें सॉल्व करिए, कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू क्लास।